तो जो आप हार्श ट्रुथ्स के बारे में लिख रहे हो उसमें से कोई एक हमें बताइए। अभी जब कोई भी आता है ना तो आप डेक देखते हैं और उस डेक में आपको पहले दिखता है विजन और मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। आपको यही नहीं पता होता कि आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, और आप विजन बना रहे होते हो, मिशन बना रहे हो, तो विजन होता है इन 10 years हाउ डू यू लुक लाइक, राइट, गुड नॉट बैड, no complaints about it. So I think one of the sections that I cover in my book is called visionaries often starts without big vision. So क्योंकि क्या होता है ना, तो it is not about vision. What I believe is it is about alignment when you start. Alignment with your thought, alignment with the product, alignment of your product and services with your customers. And once you arrive at it, when you start executing, aligning your entire team for next 2 weeks on how to work on it, then for next 2 months, are we moving forward? So it is not about speed, it is about velocity, because velocity is what gives direction to the speed, right? So वहाँ पर बहुत important हो जाता है। तो वो, and that's where I cover, अगर आप देखेंगे, Amazon started as an online bookstore, right? Yeah. YouTube started as a dating site. Samsung started as a grain trading company. Slack started as a gaming company. So I can go on and on and on and on. Netflix guys started as talking about shampoo sachet manufacturing company. I started as selling jeans door to door, right? Today I'm doing trophies. So can we really define our vision so early? I think a lot of things evolve. Keep evolving, keep revolving is a mantra for entrepreneurs at a particular stage. There are exceptions. There are few amazing stories. Do buy into them. Do get inspired by them. But when you are building, be pragmatic as much as possible. So I, in that book, I kind of try to demystify. So don't get into the trap of vision statement. Try to open your true vision. And true vision क्या है? जो आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं रात को अंधेरे में निकलूंगा ना, जब आप एक नया बिजनेस करते हो तो अंधेरा है, आप एकदम एनालॉजी बनाते हो, एकदम अंधेरा है। अब आप जो भी सोच रहे हो ना वो टॉर्च है। आप टॉर्च जलाओगे तो आपको कितने दूर तक दिखेगा? 3 या 4 फीट तक। आप एक कदम आगे चलोगे तो फिर आपको 4 ही फीट दिख रहे हैं। सो टॉर्च लीजिए और चलना स्टार्ट कीजिए, आपको दिखने लगेगा जब तक सवेरा ना होता और है। जब तक वो होगा तब आप देखिएगा आपको एक बहुत लंबा रास्ता दिखने लगेगा और सुबह सनराइज हो जाएगा। सो स्टार्ट योर जर्नी विद अ टॉर्च. Forget about vision statement. Even an investor asks you what is your vision, talk about the vision of next couple of quarters and 1 or 2 years. Don't talk about what you would be, what you can be. अगर वो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए कि हर कोई इवॉल्व होता है, एंड स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड वेयर यू सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, कैसे AI आ रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहे हैं. सो इन दैट्स, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले हम बात कर रहे थे ना कि 7-Eleven इंडिया आएगा, राइट, और वो इंडिया आके रिटेल स्टोर्स खोलेगा जैसे ग्लोबली ग्रोसरी स्टोर्स. स्विगी और जोमेटो ने लैंडस्केप ही चेंज कर दिया. रिलायंस आज तक डील साइन कर रखा है. आप 7-Eleven के एक स्टोर भी देखे आपने? क्योंकि आप जाके खरीदोगे ही नहीं 2 साल में. 2 साल बाद आप ऑनलाइन ही खरीद रहे होगे टैप करके ग्रोसरी. So this is the change, speed of change. So we have to understand and align ourselves on a regular basis. Wow. कोई आपको रिग्रेट्स है बिजनेस में? ऑनेस्टली जो मुझे जानते जानते मेरे को लाइफ में कोई भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता. हाँ, बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं और हर मिस्टेक, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में मैंने फेल भी किया है. आई हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, बट आई हैव बीन एबल टू रिफ्लेक्ट बैक and work on it, and I always try to never repeat the same mistake again. That's what is a mantra of my life in terms of so I would say regret is, as an entrepreneur, बहुत early सीखने का मतलब, regret is no solution. The only solution is reflect, not regret. Okay. एक business decision intuition based होना चाहिए या data driven होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एक चीज़ को एक नज़रिए से नहीं देख सकते. खाली अगर आप इंट्यूशन से करते हैं, यू कैन बी सक्सेसफुल डेफिनेटली, यस, आप गलत भी हो सकते हैं. आप खाली डेटा ड्रिवन करते हैं बट आपको उसमें कुछ फील ही नहीं आ रहा है, तो शायद इवन दो बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, आप कहीं ना कहीं आपको दिखना बंद हो जाता है, उसमें स्पार्क दिखना बंद हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंबाइन इंट्यूशन एंड डेटा, ब्रिंग इन डेटा बोथ इन टू प्ले to take an effective and efficient decision. Okay. आपके बिजनेस में कोई एक ऐसा टास्क है जो आप कभी डेलीगेट नहीं करते हो?
नहीं, और मुझे लगता है कि डेलीगेशन ही सबसे बड़ी पावर है जब आप स्केल करना चाहते हैं। तो हम वापस एवरीथिंग। सो मैं यही आता हूँ। तो डेलीगेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपने यहाँ लाया। क्या होता है ना, डेलीगेशन, आप जब स्केल की बात करते हैं ना, तो हम स्केल में इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, राइट? इन्वेस्टर नहीं, आपको डेलीगेशन चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा बॉटलनेक आपकी ग्रोथ में केवल आप होते हो। bottleneck is always at the top of the bottle, right? And that's so true when it comes to businesses, because हमें लगता है क्यों यार वो उतना अच्छा नहीं करेगा जितना अच्छा मैं कर रहा हूँ, यार वो मेरे इस जो मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी है ना उसको ब्रीच कर देगा, वो आज है वो कल नहीं रहेगा। वो कल नहीं रहे या ना रहे, अगर आप वो नहीं देंगे तो आप कल नहीं रहेंगे। ये बहुत ही क्लैरिटी है। एंड यू कांट एम्पलीफाई दैट यू कांट शेयर, यू कांट एम्पलीफाई व्हाट यू कांट शेयर। सो बहुत बहुत क्लियर है। सो अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो अपनी टीम के साथ, तो डेलीगेशन, और हर की एक जर्नी होती है डेलीगेशन की। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप टास्क डेलीगेट करते हो, फिर धीरे धीरे आप एक लेवल पे पहुंचते हो ना, टास्क के बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हो, राइट? फिर एक स्टेज आता है जहाँ आप डिसीजंस डेलीगेट, एंड दैट इज द ब्यूटी। यस, सो ये 3 स्टेजेस हैं एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। सो एंटरप्रेन्योर अगर कुछ डेलीगेट नहीं कर पाएगा, तो आज आपने हर्ष मारीवाला देखिए, अगर मैरिको इंडस्ट्री, आज वो तो उन्होंने स्टार्ट किया, सारे डिसीजन लेते थे, आज वो उस कंपनी से में नहीं है, चेयरमैन की तरह है, बट CEO है कोई और। अगर वो डेलीगेट नहीं करते तो क्या वो कंपनी एक कंसिस्टेंटली इसी तरह चलती रहती? So to make it an entity which runs by itself, irrespective of you, it is very important to delegate everything. Rather, in today's world with AI coming in, we have the ability to, I can put in everything that I feel, I think. Even you can have a part of my brain working for that company for long. So delegation is not abdication. So delegation is something, it's a beauty. It will be hard, but we'll have to do it. So again, entrepreneurship is about doing hard things. We chose it. We're doing about hard things. It will fall. You'll fall back. It will not be okay in all the scenarios. अगर आप हर बार डेलीगेशन करोगे और आप हर बार सक्सेसफुल होना चाहोगे तो भी गलती है। और आप एक खराब एक्सपीरियंस की गांठ बांध के, नॉट बांध के अपने पास रख लोगे कि आई विल नेवर डू इट अगेन, then you will be on a suffering side. Even though you make money, you'll lose life. Yeah. So if you are making money at the cost of your life itself, which is a never-ending kind of loop and grind, then what is the point? Okay. What is one sacrifice that you have made for your business, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है? मेरे ख्याल से मेरे पास कोई बहुत क्वेश्चंस है जो आपके अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैं आज भी ट्रैकिंग की तरह देखता हूँ। सेक्रीफाइस मेरे को लगता है हर कोई सेम सेक्रीफाइसेस करते हैं। ओके, राइट। देखिए, सबकी अपनी चैलेंजेस होगी लाइफ में, किसी की इमोशनल, किसी की फाइनेंशियल, किसी की कुछ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेक्रीफाइस क्या है? देखो, जब मैं रीफिल बिल्ड कर रहा था, उसकी ठीक 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पैसे नहीं, मारवाड़ी घरों में ऑलरेडी शादी होनी है टाइम से, शादी प्लस रीफिल, जबकि मैं 6 दिन ऑफिस में ही था। मतलब कि मैं 3 घंटे घर आ रहा हूँ, 4 घंटे घर आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर बिल्डिंग एंड यू डोंट हैव अ सिंगल एम्प्लॉय ऑन योर पेरोल, खाली मैं और मेरे पार्टनर्स, सो यू हैव टू डू एवरी डैम थिंग पॉसिबल। सारे जो ईमेल थे ना, technical@refill.in, marketing@refill.in, info@refill, सब हमारे पास एक ही वो था ना, फॉरवर्ड। जी। तो वो था। तो उस टाइम पे आप ये नहीं देखते हो कि क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो। बट मैं बोला, जब आप when you are excited about something ना, the sacrifice doesn't come into play. So एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो बहुत एक अच्छा टर्म उन्होंने यूज़ किया कि हम बार बार बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस। फॉर पीपल हु लव work, who love life, it is not about work life balance, it is about work life integration. So basically you integrating 2 things and it cannot be balanced. There are few moments or few weeks and months in your life where you have to give more weight to something. आपका एग्जाम है तो आप पढ़ाई को ज़्यादा वेट दोगे ना उस टाइम पे, कि आप बोलोगे नहीं मुझे मूवी देखने तो जाना ही है, मुझे तो घूमने जाना ही है, मेरे समर वेकेशंस है, मैं तो मेरे ननिहाल बॉम्बे है या कहीं और है, आई विल गो। आप क्या बोलोगे? नहीं, इस साल मेरे बोर्ड्स हैं, इस साल मेरे CA के एग्जाम है, इस साल मेरे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, आई लेट इट गो। दैट्स व्हाट यू डू। सो बैलेंस इज नॉट
that every week it has to be a balance. Balance is which comes over a period of time, maybe 3-4 years. So now let's redefine work-life balance. At least for entrepreneurs, I would say that yes, it has to be redefined, and a period should be taken which is a little longer than just a week. Okay. Last question, Alkesh. आपको what is the fastest way to turn 10 lakh into 1 crore? Wonderful. I think 10 lakh, if you have 10 lakh, I'll now kind of do a recap of the entire podcast we did. I think you covered it into the entire podcast. You started with the validation of an idea. Try to validate idea with at least possible money. लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, आप पहले अपने आइडिया को वैलिडेट कीजिए. जिस तरह से भी वैलिडेट कीजिए, लोगों के पास जाइए, वैलिडेट कीजिए. वंस यू हैव वैलिडेटेड आइडिया एंड यू थिंक इट कैन बी डन, रन स्मॉल पायलट. So if you are able to successfully run the pilot and see that it can work, it might work, and you have that belief, then try to assemble a team around it. At least few people, either as co-founders or top 2-3 people, because you won't be able to run it all alone. Yeah. If you really want to scale and grow big. If you are just want to open a mom and pop shop, it doesn't apply to you. So once you have that team coming on board, then you have that idea validated, then go all out. Now even if you have less money, believe me, you'll find out a way to get money. People बोलते हैं ना, मेरे पास अच्छा आइडिया, मनी नहीं मिल रहा है. मनी अच्छे आइडिया को चेज करता है, अच्छा आइडिया मनी को चेज नहीं करता है. क्यों? कि मैं भी इन्वेस्टर हूँ. अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए जो वैलिडेटेड है, वो बंदे में, फाउंडर में मुझे ज़ील दिखाई दे रही है और मुझे लगता है मैं इसको मल्टीप्लाई करके एग्जिट कर सकता हूँ, क्या मैं रुकूंगा इन्वेस्ट करने से? नहीं रुको. कोई भी इन्वेस्टर नहीं रुकेगा. अगर आपको पता चलता है कि इस मॉडल में इतना दम है, ऐसे है और ये है, नहीं रुकेगा. तो आपको और मुझे ये बिलीव करने के पहले आप में ये बिलीव होना चाहिए. तो एज ए इन्वेस्टर जब हम ये देखते हैं ना, हम रादर देन मॉडल, हम फाउंडर का बिलीव देखते हैं. समझ रहे हैं? आप ये बोलते हैं कि आपको बिलीव नहीं आ रहा है, बट हमें ये फील होता है कि फाउंडर को बिलीव नहीं आ रहा है अभी तक. एंड दैट इज अ बिगर पॉइंट फॉर अस, बिकॉज फाउंडर इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी वेंचर. बिकॉज बिजनेस मॉडल बदल सकते हैं. वो स्टार्ट किए कब बनाने के लिए, बना रहे होंगे कुछ और, बट अगर फाउंडर सही है, तो अगर फाउंडर ही नहीं है पिक्चर में, राइट, तो मॉडल कितना भी अच्छा हो, आइडिया कितना भी अच्छा हो, there is no point putting in any money there as investors, and for them also their team will not stick to them. So that shared compass, shared vision becomes very, very, very critical. And I always say, so bigger the dream, more critical the team. So work on people, work on validating your idea, pilot, do multiple pivots, do not feel ashamed, do not get hard-wired and coded that मेरे को तो यही करना है, मुझे पता है यही चलना है और मैं यही करूँगा. किसी को विश्वास हो नहीं हो, मुझे मतलब नहीं है. एक्सेप्शंस होते हैं और आपके पास कुछ ऐसा आइडिया इतना कोर है तब तो ठीक है, बट मैक्सिमम केसेस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी फ्लूइडिटी एंड एजिलिटी अगर ये साथ में आती है, तभी आप अडेप्टेबिलिटी ला पाते हो. एंड ऑल दिस 3 रिजल्ट्स इनटू अडेप्टेबिलिटी विच कीप्स यू गोइंग, रनिंग एंड किकिंग इन दिस हाइपर डायनामिक वर्ल्ड. Wow. Alkesh, I cannot tell you how interesting this podcast was and how कहाँ हम लोग बहुत सारे जगह में offbeat चले गए, but it was all so worth it, so learning experience. Thank you so much for giving your precious time to us. It's my pleasure. It was great interacting with you. And there's a very common line I like to end up with कि क्योंकि आप entrepreneurship हम कवर कर रहे थे और आपने कई बार sacrifice के लिए बात किया और बाकी चीज़ों के लिए बात किया, और मैं बार बार घूम के ये आ रहा था कि एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना हार्श ट्रुथ को, देन लाइफ बिकम्स ईजी. एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे डायमंड्स हैं, ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर डायमंड्स, एंड डायमंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस प्रेशर exerted over them over the years. तो हिंदी में हम हमेशा ये बोलते हैं ना, कोई प्रेशर में बिखरता है और कोई प्रेशर में निखरता है, और जो निखरता है वही डायमंड होता है. सो टू एवरी एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, टेक प्रेशर एज अ प्रेशियस गिफ्ट and be a diamond. Wow, beautifully said. Thank you. Thank you.